Okay, fine. So there are only two questions in yesterday's lecture. Number one, I received from Dr. Gitesh. Gitesh, are you there? Yes, sir. Okay. Your question is, what is right-handed and left-handed coil DNA? Perfect? Yes, sir. Okay. What exactly happened, Gitesh, when DNA is start coiling, because number of nucleotide units are more, जब न्यूक्लियोटाइड यूनिट ज्यादा हो जाती हैं, वो ज्यादा होने लगती हैं, तो कॉइलिंग जब स्टार्ट होता है तो या तो वो क्लॉकवाइज मैनर में कॉइलिंग स्टार्ट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। लाइक फॉर एन एग्जांपल, यदि आपने घर में अपने यहाँ दीदी मम्मी को देखा होगा, तो जब चोटी बनाई जाती है तो एक एक्सिस, एक स्ट्रैंड के ऊपर से दूसरा स्ट्रैंड लिया जाता है, तो या तो वो इस डायरेक्शन में लेंगे पहले या तो वो इस डायरेक्शन में लेंगे पहले। So only two directions may be there. Either they will start it clockwise or they will start it anti-clockwise. That only called as right-handed or left-handed. Dr. Gitesh, agree? Yes, sir. Okay, perfect. So one more doubt was there for nucleotide structure. Now it doesn't require because Kadambini का जो doubt है वो हम MD batch में पूरा कर लेंगे. No need to discuss over here. Any more doubt to anyone in nucleic acid structure? No, Any sir. doubt to anyone in nucleic acid structure? No doubt, sir. Okay, perfect. Chali. So I should give you some questions, because yesterday one student asked me for some more questions. So I should start with those questions first. मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आप लोग उसको सॉल्व करें. The question is, if I am giving you 6,800 angstrom length of DNA, perfect, then what will be the total number of bonds? What will be the total number of hydrogen bonds? Please, मैं इरेज करता हूं, तब तक मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए. Sir, is it 2000? थोड़ा सा विचार कीजिए, मतलब हो सकता है आपका भी सही हो, बट आपने कैलकुलेट कर लिया? Sir, not pair of bonds. I calculate the only pairs, like ATGC pairs. What I'm asking? Yes. Anyone? सविता का आया 2000 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके. Sir, will it be 5000? आपका आया 5000, समिता का आया 2000. Sir, 2000. कार का आया 10,000. चलिए, लेट मी चेक. यदि कल एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि 6,800 एंगस्ट्रॉम यदि आपको लेंथ दी गई है, व्हाट वी एक्सपेक्ट 34 एंगस्ट्रॉम 10 base pairs. Agree? So 340 will be 100 base pairs. So 680 will be 200 base pairs. So 6,800 will be 2,000 base pairs. If 2,000 base pairs, so आपको टोटल मुझसे ये पूछना चाहिए था कि ATGC कितने होंगे. यदि वो इक्वल है, if AT equals to GC, which is expected,
So इस 2000 base pair में 1000 base pairs we are expecting A double bond T, and 1000 base pairs we are expecting it is G triple bond C. So if it is double bond, then into 2, 1000 into 2, it should be 2000, and it should be into 3, it should be 3000. So total should be 5000. और 5000 किसने आंसर दिया था? सर गायत्री. Very good. It should be 5000. Perfect. Any doubt to anyone? ऐसे अजीब अजीब से सवाल बन सकते हैं बच्चों इसमें. Any doubt to anyone? Okay. Sir, the base pairs are expected to be equal. अब वही है, वो क्वेश्चन में आपने मुझसे पूछ लेना चाहिए था पहले कि क्या सर A डबल बॉन्ड T इक्वल्स टू G ट्रिपल बॉन्ड C. ये क्वेश्चन में मैंने देना चाहिए था, बट सिंस आई एम मेकिंग द क्वेश्चन एट इंस्टेंट, वो रह गया, उस समय मुझे बताना चाहिए था. राइट राइट. हु आस्क्ड दिस? ओके, Yes. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. बच्चों जो कम्युनिकेट करे वो आंसर दिया करे फटाफट. आंसर इन द सेंस इंटरैक्ट किया करे कि किसने बोला क्या हुआ है ना. चलिए, शुड आई गो फॉर वन मोर क्वेश्चन? Yes, sir. Okay. So one more question is, if I'm giving you one zero two four 1020 angstrom length and A double bond T or G triple bond C are alternatively arranged, then number of bases. फटाफट. कुछ फिगर गलत ले लिया क्या मैं? ओमकार कह रहे हैं 600. कुछ फिगर शायद मैंने गलत ले लिया. ओमकार कह रहे हैं 1200. एनीवन? ओमकार ने कहा 1200. एनीवन? एनीवन? गायत्री कह रही है 300 बेस पेयर्स, सो 600 बेसिस. सोनंदी कह रही है 300. सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, क्या ही कर रहे हो यार. 34 एंगस्ट्रॉम पर होते हैं बच्चों 20 बेसिस. ठीक कह रहा हूं मैं? क्यों मैंने 20 बेसिस लिखा? आपको स्टेप बाय स्टेप में लिखूं तो इट शुड बी 10 बेस पेयर्स, सो इट शुड बी 20 बेसिस. 34 एंगस्ट्रॉम पर 20 बेसिस, तो 1020 पर कितने बेसिस? 34 Sir, 64. 4 into 30, I think. 3 3s are 9. Yes, sir. Correct. 600. 3 4s are 12. Yes, 30. But Then it is 600 bases. Omkar, agree?
Yes, sir. It's not base pairs, it is bases, because 30 will be the base pairs. 30 not 30 will be the base pairs. Angstrom 34 angstrom पर 20 bases. क्या ही किया हम लोगों ने? तो 1020, yes. 600 bases. Answer will be 600. Omkar, agree? Yes, sir. Okay, perfect. So I hope कि आप क्वेश्चंस कर लेंगे. ऐसे क्वेश्चंस में किसी को दिक्कत आ रही हो तो एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें and we'll finish this. One more question like if thymine is 5%, then what will be the G? बोलिए, instant answer. ओमकार कह रहे हैं 45%, सम्यक कह रहे हैं 45, स्वानंदी कह रही है 45, आयुष कह रहे हैं 45, सभी का सायन का 45. भाई जाहिर सी बात है. टी अर्पित आर यू देयर? Yes, sir. अर्पित आपको समझ में आया ये सवाल कि नहीं आया? Yes, sir. कैसे निकालोगे अर्पित? Sir, बोलो. T की वैल्यू 50% है, सॉरी 5% है, तो A की वैल्यू भी 5% हो जाएगी. 10% तो बाकी 45 आ जाएगी. 90% का. 90% divided by 2, तो 45 each. Yes, परफेक्ट. yes, sir. हाँ, डॉक्टर एमजे कुछ कहना चाह रहे हैं? No, sir. I have raised hand to answer. Okay, perfect. चलिए. So I hope कि now we are confident over biomolecules, what are macromolecules, what are micromolecules, acid soluble fraction, insoluble fractions, ये सब हमने समझ लिए, है ना? लिपिड एक्सेप्शन के तौर पर था. फिर हमने कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखा. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बाद अमीनो एसिड देखा. अमीनो एसिड के बाद हमने प्रोटीन्स समझे. प्रोटीन के बाद मैंने आपको एंजाइम बताया. वो सब एक ही नेचर के थे. अमीनो एसिड मोनोमर था, उससे बना हुआ पॉलीमर प्रोटीन, और ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. सो हमने वो सारी तीनों पार्ट देखे. उसके बाद वी स्विच टू न्यूक्लिक एसिड एंड नाउ इट इज टर्न टू lipids and carbohydrates. Only 2 points are there, lipids and carbohydrates. So today we will finish itself lipid and carbohydrates. हेडिंग डालते हैं lipids. बहुत छोटा सा पार्ट है एज पर एनसीईआरटी, हम लोग उतना ही देखें. Excuse me, sir. हाँ बोलो. Sir, may I just go for 2 minutes and plug in my laptop? Yes, yes, no problem. Let us start with lipids. मैं पॉइंट्स बोलता भी चलूंगा बच्चों और आप लोग लिखते भी चलेंगे. लिपिड्स की केस बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उतना ही पार्ट हम लोगों को देखना है, राइट? सो पुट द हेडिंग एज लिपिड्स. कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाता चल रहा हूं, मैं बोलूंगा भी और आप साथ में लिखते भी चलेंगे. नंबर 1, फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ अल्कोहल. Lipids are fatty acid esters of alcohol and related substance that are insoluble in water.
insoluble in water. Point number 2, मेरे साथ ही लिखते चलेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं. Soluble in non-polar organic solvents. Soluble in non-polar organic solvents. Soluble in non-polar organic solvents like ether, benzene, chloroform, like ether, benzene, chloroform, etc. Point number 3. As per NCERT statements, a fatty acid has a carboxylic group. A fatty acid has a carboxylic group attached to an R group. Attached to R group. अमीनो एसिड का भी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था. R होता है वहां पर एल्किल ग्रुप. फैटी एसिड एक ऐसा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि किससे अटैच होता है? R ग्रुप से. परफेक्ट. और ये Yes. R ग्रुप, this R group could be methyl, ethyl, or higher number. Could be methyl, ethyl, or higher number from 1 to 19 carbon. From 1 to 19 carbon, excluding, क्योंकि 19 हम लिख रहे हैं, right? 1 to 19 carbon, excluding carboxyl carbon. Excluding carboxyl carbon. इसमें इंपॉर्टेंट बस पूछा जाता है आपसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना? मैंने फिर भी आपको पॉइंट्स लिखवा दिए कि लिपिड्स क्या है. फैटी एसिड एस्टर्स हैं, अल्कोहल के ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में इनसॉल्युबल है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल. फैटी एसिड बोलो तो क्या, लिपिड का एक मोनोमेरिक स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है आर ग्रुप से. वो आर ग्रुप मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, और भी हायर हो सकता है जिसमें कार्बन का नंबर 1 to 9 है लेकिन उसमें कार्बोक्सिल कार्बन को छोड़ दिया गया. एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया गया वो दोनों ही एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा. पामेटिक एसिड 16 कार्बन और एरिथ्रोनिक एसिड 20 कार्बन. पामेटिक एसिड 16 कार्बन, लेकिन यहां सवाल नीट का क्या बन रहा है इसके बाद लिख रहा हूं. 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन. और एरेकिडोनिक एसिड 20 कार्बन. एरेकिडोनिक एसिड 20 कार्बन. अब आप कहेंगे सर आपने तो 19 ही लिखा था, तो मैंने कार्बन 1 to 19 अभी भी कह रहा हूं, लेकिन कार्बोक्सिल कार्बन COOH वाला भी ऐड हो जाएगा ना, वो काउंट इसमें नहीं है. इसमें आर ग्रुप में 1 to 19 हो सकते हैं और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा उसका सी यदि मैंने पकड़ लिया तो दैट विल बी 20. इसको भी मैंने लिख दिया इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन. परफेक्ट. Sir, what is the page number in NCERT? 144 चेक कीजिए.
Okay, sir. ओके, अब सीधे सीधे लिपिड का क्लासिफिकेशन में आपको लिखाऊं। Noted? These points are noted. Yes, Shreya, sir. Yes, sir. Ayush, Prasanna. Yes, sir. ओके, ये लर्निंग पार्ट है बच्चों। कंसेप्ट वाला जितना ही पार्ट था मैंने न्यूक्लिक एसिड तक आपको बताकर बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपसे करवा दिए। सारे स्टेटमेंट मैंने एनसीईआरटी से आपको बताने हैं जो कि आपको लर्न करते हैं ना, लेकिन उस सब को एक जिसमें प्रोबेबिलिटी एकदम कम हो जाएगी गलत होने की, वो पार्ट हम कर लेते हैं। लिपिड्स का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। लिपिड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज सिंपल लिपिड, वन इज कंपाउंड लिपिड, and one is derived lipid. One is simple lipid, one is compound lipid, and one is derived lipid. Simple lipids we can divide into 2 classes. One will be fats and oils, one will be waxes. Fats and oils जो है chemically they are triglycerides. They are triglycerides. Wax तो आपको पता है बीज वैक्स एक होता है। ओके, कंपाउंड लिपिड जो है उनकी कुछ कैटेगरी में बनाऊं। कंपाउंड लिपिड लाइक फॉस्फोलिपिड, इसका एग्जांपल लेसिथीन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये नीट का दूसरा क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आपको दिखेंगे बच्चों। लेसिथीन क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला फॉस्फोलिपिड है लेसिथीन। दूसरा होता है कंपाउंड लिपिड की मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो क्यूटीन, सुबेरीन जो प्लांट सेल में पाया जाता है और ट्रांसपिरेशन रेट को मिनिमाइज करता है, वाटर लॉस को कम करता है। कुछ और हो सकते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। क्यों कंपाउंड है भाई ये? ग्लाइको मतलब शुगर यूनिट के साथ लिपिड जुड़ा है, इसलिए ग्लाइकोलिपिड्स। और हो सकते हैं कुछ लिपोप्रोटीन्स। किसके साथ जुड़ा है लिपिड बताइए? लिपोप्रोटीन्स में प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स। ये मैंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए बताया था एक प्रोटीन, यदि आपको ध्यान हो तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नाम बताया था। परफेक्ट। स्टेरॉइड लिपिड्स की यदि मैं बात करूं तो स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड्स मतलब जो दवाइयां मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होते हैं, उनमें स्टेरॉइड कंटेंट होता है। दूसरा यदि मैं आपको बताऊं तो आपने सुना शायद होगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे आर नॉट, मतलब दे आर द ग्रुप ऑफ हार्मोन, तो दे आर नॉट ट्रू हार्मोन। इन्हें कहते हैं लोकल हार्मोन्स। लोकल हार्मोन्स क्यों कहते हैं बच्चों? पॉइंट टू बी नोटेड इन योर माइंड, व्हाई प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर नोन एज लोकल हार्मोन्स। क्योंकि हार्मोन का एक टारगेट, हार्मोन का एक कैरेक्टर होता है बच्चों कि वो अपने टारगेट पर पहुंचकर यूटिलाइज होता है। ये इतना रेडियली मेटाबोलाइज हो जाता है कि टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए इट इज नॉट अ ट्रू हार्मोन, इट इज अ लोकल हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, उसके बाद बहुत सारे पिगमेंट्स हैं यार, कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट होते हैं ये, जिसमें मिर्ची का लाइकोपीन, टमाटर का लाइकोपीन, गाजर का कैरोटीन, लाइकोपीन, कैरोटीन, ये सब क्या है? पिगमेंट्स हैं जो डिराइव्ड लिपिड की कैटेगरी में आते हैं। परफेक्ट। ये वैक्स की स्पेलिंग मैंने ई क्यों लगा दिया? ई लगा दिया तो सुनो, वैक्सेस कर देता हूं, WAXES।
या वेक्स। ये सब लर्निंग पार्ट है बच्चों। आपको मैं बस आपको समराइज करके पूरी एनसीईआरटी में हार्डली 1 पैराग्राफ 8 to 10 लाइंस आर गिवन एंड हमें उससे स्ट्रिक्ट चलना है, बट कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दैट आई एम गिविंग टू यू। इज दिस नोटेड डॉक्टर एमजे, प्रसन्ना, अंकुर? Noting, sir. हाँ बोलो। Sir, what you Yes, have sir. written below fats and oil? ट्राइग्लिसराइड्स, इट इज द फॉर्म, केमिकल फॉर्म ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल जो होते हैं बच्चों ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में हमारी बॉडी में होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल एक यूनिट है, मोनोमर ग्लिसरॉल, उसके 3 यूनिट्स, तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड्स। अंडरस्टूड? Sir, please pardon the examples of carotenoids. लाइकोपीन टमाटर का, कैरोटीन कैरेट का, दीज आर द पिगमेंट्स। गायत्री, Thank you, sir. ओके चलिए, अब इसमें जो एनसीईआरटी में है उस पर आने के पहले कुछ फंक्शनल पार्ट की बात मैं कर दूं। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लिपिड्स, फंक्शनल एस्पेक्ट, कोई बता सकता है कि लिपिड का कोई फंक्शन? To produce hormones. बहुत बढ़िया, कौन बोला हार्मोन का? Prasanna. प्रसन्ना, वेरी नाइस। हार्मोन सिंथेसिस के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो बच्चे फूड सोर्स है अच्छा, घी तेल जो हम खाते हैं बहुत अच्छा एनर्जी सोर्स है हमारे लिए। ओनली 3 एनर्जी सोर्सेस आर देयर, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें एक मैंने आपको बता दिया, दैट इज फूड। दूसरा, ये यूटिलाइज नहीं होता तो अच्छा खासा एडिपोज टिश्यू के तौर पर ये रिजर्व में पड़ा रहता है, फूड रिजर्व। एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे ये स्टोरेज के फॉर्म में पड़ा रहता है, दैट इज फैट्स कॉल्ड एज फूड रिजर्व। परफेक्ट। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है लेसिथिन, तो स्ट्रक्चरल पार्ट बनाने में बहुत बड़ा रोल है यार। क्योंकि आप सेल बायोलॉजी जब पढ़ेंगे, आयुष घुमरे कह रहे हैं कवरिंग अराउंड द एक्सॉन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, मैंने स्ट्रक्चरल पार्ट में डाल दिया आयुष। लेकिन क्या आपको पता है आयुष, जिस स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो उसका नाम क्या है आयुष? Myelin sheath. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बच्चे। तो लेसिथिन तो सेल मेम्ब्रेन में हुआ आयुष, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। दिस इज माइलिन शीथ, सेल मेम्ब्रेन, बहुत सारी ऐसी चीजें जो लिपिड से बनती हैं। वेरी नाइस। अच्छा, फैट डिपॉजिट होने की वजह से क्या होता है, जो पोलार एरिया में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, पोलार बियर, गायत्री कह रही शॉक एब्जॉर्बर, बहुत बढ़िया, मैं वही कहना चाह रहा था। ये क्या कहते हैं, हीट कहना चाहिए, कंजर्वर तो नहीं कहना चाहिए मैंने उसको, इंसुलेटर कह दूं मैं। गायत्री अग्री? Yes, sir. परफेक्ट। एक प्रसन्ना ने जो कहा बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ वो हार्मोन सिंथेसिस। परफेक्ट। और कई बार ये काम करते हैं बच्चों विटामिन कैरियर की तरह, विटामिन कैरियर्स बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनकी जरूरत पड़ सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ फीटस, आयशा प्रोटेक्शन ऑफ फीटस मतलब कैसे, नहीं समझा आयशा? I think there also acts like a shock absorber. नहीं बच्चा, वो तो क्या सारी मस्कुलर पार्ट में, यूटेरस एक अपने आप में मसल है तो वो तो शॉक प्रूफ रहेगी ही रहेगी, शॉक एब्जॉर्बर तो रहेगा ही रहेगा, बराबर। Yes, sir. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बनता है, जो नीट में पूछा जाने वाला पार्ट है, इज दिस नोटेड? Yes, अंकुर, sir. रिया, Yes, sir. श्वेता, राशि, प्राजक, ओमकार। ये सिद्धेश क्यों एब्सेंट है भाई? सिद्धेश अपनी बैच में या नहीं? आयुष, सिद्धेश धात्रक आपकी बैच में है? Sir, don't know. अच्छा, ओके, ठीक है। इशिता, अर्जुन, स्वानंदी नोटेड? Yes, sir. Yes, sir.
फैटी एसिड्स, इससे मिलकर लिपिड बनता है ना, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से। तो फैटी एसिड को मैंने दो कैटेगरी में, नीट की बात तो यहां पर आई, एक हो गया सैचुरेटेड और एक हो गया अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब डू नॉट हैव डबल बॉन्ड, डू नॉट हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इनका टेम्परेचर हायर मेल्टिंग टेम्परेचर, हायर मेल्टिंग टेम्परेचर। देयरफॉर चूंकि मेल्टिंग टेम्परेचर इनका ज्यादा है बच्चों, तो व्हाट वी एक्सपेक्ट, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। व्हाट अबाउट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, one or more बोलिए, वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। सो मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा, मेल्टिंग टेम्परेचर कम, therefore liquid at रूम टेम्परेचर। ये पूछा जाता है बच्चों आपसे। इसको नोट करो, फिर मैं एक इमेज शेयर करके आपको एक्सप्लेन करूं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और वो इमेज फिर शेयर भी करूं आपके साथ। नोटेड प्राजक, राशि, श्वेता, आयशा, Yes, sir. सम्यक, तन्वेश, sir. Yes, sir. ओके। तो एक पहले एक स्क्रीन शेयर करके आपको एक ग्राफ दिखा देता हूं बच्चों, उसके बाद फिर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा वैक्स के बारे में यदि लिखना हो तो वैक्स के बारे में हम लोग लिख लेंगे, वैसे जरूरत नहीं है उसकी, बट स्टिल पहले हम लोग समझते हैं। I hope screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ग्रुप पर भी शेयर कर दिया बच्चों, लेकिन टाइम बचाना है और बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है टाइम का, तो लिख भी सकते हैं ताकि लिखने में दिमाग में फिक्स हो जाता है, समझते भी चलेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, क्योंकि यही वो सवाल है नीट का। टोटल लिपिड में मैंने 3 सवाल बताए भी थे, एक लेसिथीन का बताया क्योंकि वो मेम्ब्रेन का पार्ट है, दूसरा मैंने आपको बताया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हायर और लोअर मेल्टिंग टेम्परेचर आपसे पूछा जाएगा, परफेक्ट। और तीसरा आपसे पूछा जाएगा पामेटिक एसिड और एरिकिडोनिक एसिड, जिसमें 19 कार्बन इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग ऐसे वर्ड पूछ लिए जाएंगे आपसे जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि होते तो 19 ही, आर ग्रुप में कार्बन का नंबर मैक्स टू मैक्स 1 to 19, 1 से लेकर 19 तक हो सकता है, लेकिन 20 कब होगा, जब उसमें कार्बोक्सिल कार्बन को ऐड कर दिया जाएगा, तो इट विल बी लाइक 20, परफेक्ट। Yes, sir. अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स में भी आपको डिफरेंस देखना है, तो मैंने एक तो लिखा ही दिया आपको कि डू नॉट हैव डबल बॉन्ड इन देयर फैटी एसिड्स, परफेक्ट। अनसैचुरेटेड में 1 or more डबल बॉन्ड इन देयर फैटी एसिड्स।
Saturated में all carbon atoms are fully saturated. Carbon atoms are unsaturated in the region of double bond. जहां पर double bond है वहां पर unsaturated है वो. Saturated की chain straight chain है, unsaturated की bend है. ये सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पर क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है. ये लोअर होते हैं, ये मैंने आपको लिखा दिया. एनिमल फैट जो होते हैं वो मोस्टली सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और प्लांट फैट्स जो होते हैं वो जनरली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं. नॉट अ यूनिवर्सल लॉ बट दिस इज द फैक्ट कि एनिमल फैट्स आर मोस्टली सैचुरेटेड एंड प्लांट फैट्स आर जनरली अनसैचुरेटेड. परफेक्ट. इसीलिए जो एनिमल मीट होता है या एनिमल नॉनवेज जो हम कहते हैं जैसे, वो एनिमल मीट ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करता है. आयशा कह रही है थर्ड पॉइंट इन डिटेल. स्ट्रेट चेन. स्ट्रेट चेन का मतलब यह है बेटा कि डबल बॉन्ड यदि उनमें नहीं है आयशा, तो इनमें बेंडिंग नहीं होती. और अनसैचुरेटेड फैट में चूंकि जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है वहां पर एंगल का डेविएशन आता है और वहां बेंडिंग की संभावना बढ़ जाती है. आयशा, स्ट्रेट चेन का मतलब है इनका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है सैचुरेटेड का. बट इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड इट इज हैविंग अ बेंड. आयशा, गॉट इट? Yes, sir. ओके. सो आई वाज ऑन द पॉइंट कि एनिमल फैट जो होते हैं वो मोस्टली सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है. और प्लांट्स में यूजुअली ऐसा नहीं होता. परफेक्ट. पॉइंट नंबर 8 लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. एसेंशियल और नॉन एसेंशियल इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है. एब्सेंट और प्रेजेंट में सैचुरेटेड फैट में एसेंशियल फैटी एसिड्स नहीं होते, अनसैचुरेटेड फैट में एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं. परफेक्ट. पहले 5 पॉइंट्स में ही अपना नीट का सवाल बन रहा है. पहले 5 पॉइंट्स. परफेक्ट. चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर कुछ और पॉइंट्स लिखाऊं और लिपिड्स को फिनिश करें हम लोग. घी और तेल में इसी के नीचे एग्जांपल लिख लें. घी और तेल, विच वन इज सैचुरेटेड एंड विच वन इज अनसैचुरेटेड? Sir, ghee is saturated Ghee is and oil saturated is and oil saturated. is unsaturated. Perfect. Ghee is saturated and oils are unsaturated. Okay. Noted. Please wait, sir. Yes, it's waiting. No problem. Noted. I hope noted, my dear, because it is already Yes, sir.
हाँ आयशा बोलो. So what happens when blood cholesterol increases? What happened if blood cholesterol increases? Is it the question? Yes, sir. Blood cholesterol, there may be two types of cholesterol, good cholesterol and bad cholesterol. Good cholesterol is HDL, high density lipoprotein. But if it is in LDL, low density lipoprotein, it is bad cholesterol. So depend करता है कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो रहा है आपकी बॉडी में, है ना, और उससे फिर बहुत सारी समस्याएं आ सकती है, जो ब्लड वेसल्स है उसकी नैरोइंग होने लगती है. ओके Okay, sir. और उसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है. ओके परफेक्ट. तो लिपिड वाले पार्ट में लास्ट में एक नोट बस हम लोग लिख लें. लास्ट में एक नोट मैं आपको लिखवा दूं, जो मुझे लगता नहीं बट स्टिल नोट करके लिख लेते हैं. इन लिपिड्स केमिकली, लिपिड्स में केमिकल स्ट्रक्चर्स की, केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो नेवर सेम. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशियो नेवर सेम as in H2O. मतलब number of oxygen is always less than the number of hydrogen. That means that is number of oxygen is always less than hydrogen and carbon. ये नोट बस ध्यान रखिए, मतलब बाकी तो क्या है, जरूरत तो शायद ही पड़े इसकी. That's all my dear for lipid, क्योंकि इससे ज्यादा अपने को इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है. 3 चीजें बताई थी गायत्री, कौन कौन सी नीट में पूछी जाने वाली? इशिता गाड़े, कौन कौन सी? Sir, they have a higher melting point and lower melting point, that thing. Then that lenethic Lecithin. lecithin that is present in membrane, and that palmitic acid. We have to Perfect. remember that there are only 19 carbons in carbon chain, excluding carboxylic group. परफेक्ट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया इशिता बेटा, वेल डन. मतलब पूरे अटेंटिविटी के साथ बैठे हैं. स्वानंदी, आयशा, श्रुति, अग्री? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा श्रुति चौरे, आपने मुझे मैसेज डाला था राइट? Yes, sir. ओके नो प्रॉब्लम, कर लेंगे बच्चों, उसको भी कर लेंगे. चलिए, बेटर टू गो ऑन कार्बोहाइड्रेट. डालिए हेडिंग कार्बोहाइड्रेट. पॉइंट नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स. पहले एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स लिखे हम, जो एनसीईआरटी में दिए होंगे. Carbohydrates, point number 1. These are aldehydes or ketone derivative of aldehyde or ketone derivative of aldehyde or ketone derivative of polyhydroxy alcohol. Polyhydroxy alcohol. Point number 2.
made up of CHO. Made up of CHO in the ratio of CnH2nOn. Usually called saccharides or sugars. Okay. Yes, sir. Major storage in plants. किस नाम से? Starch. और animals क्या? Glycogen. Glycogen. Okay. Perfect. क्लासिफिकेशन पर आते हैं. इतने बोर्ड पर आ तो जाएगा. क्लासिफिकेशन पर आते हैं. दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं मैं. शुगर्स एंड नॉन शुगर्स. शुगर्स की बात करते हैं तो मोनोसैकेराइड एंड ऑलिगोसैकेराइड. मोनोसैकेराइड एंड ऑलिगोसैकेराइड. मोनोसैकेराइड की बात करते हैं तो दो टाइप के हो सकते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप. बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप. ये सब रटने वाला पार्ट है, थोड़ा सा लर्निंग पार्ट है ना. और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन. बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो एल्डोज और कीटोज. एल्डोजेस और कीटोजेस. नाम से समझ में आ रहा है इसमें कौन सा ग्रुप होगा? एल्डिहाइड ग्रुप. और कीटोजेस में कौन सा होगा? कीटोन ग्रुप. ओके. एल्डोज का एग्जांपल आप मुझसे पूछो तो ग्लूकोज. और इसका मुझसे पूछो तो फ्रुक्टोज. Sir, can you explain the first point? Which one? This one? Yes, sir. पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल. पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल एक कंपाउंड, उसका कीटोन डेरिवेटिव हुआ तो कीटो शुगर. कीटोन डेरिवेटिव मतलब कीटोन बना, उसका कीटोनिक फॉर्म बना तो कीटो शुगर. उसका एल्डिहाइडिक फॉर्म बना, CHO ग्रुप उसमें आया तो दैट इज एल्डिहाइड शुगर. ये एल्डिहाइड और कीटोन दो टाइप की शुगर है जो किससे बनी है? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल. पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल का यदि कीटोन डेरिवेटिव बनता है तो कीटो शुगर बनती है. एल्डिहाइड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब उससे बनने वाला सब्सटेंस. आयशा. Yes, sir. ओके. ऑलिगोसैकेराइड में तो कुछ नहीं है, नाम नंबर पर होता है. ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस पढ़ा है अपन ने सब. पेंटो शुगर पढ़ी है अपन ने, कहां पढ़ी है? न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स. बहुत बढ़िया. नॉन शुगर की बात करते हैं. नॉन शुगर वाले को कहते हैं पॉलीसैकेराइड. नॉन शुगर वाले को कहते हैं पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड जो है वो क्या क्या हो सकते हैं? वो या तो होमोपॉलीसैकेराइड हो सकते हैं,
होमोपॉलीसैकेराइड, इसका क्या मतलब हुआ? होमोपॉलीसैकेराइड मतलब क्या? बहुत बार आ चुके हैं वर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय होमोपॉलीसैकेराइड? एनीवन? हेटेरोपॉलीसैकेराइड? Sir, means there will be only one type of residue. परफेक्ट, पता है यार। कॉन्जुगेटेड पॉलीसैकेराइड, अरे भाई यदि सब यूनिट ऐसी जुड़ी है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, सेम टाइप की यूनिट जुड़ी हुई, सारी x x ही यूनिट है, लाइक ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, इस तरह से हुआ तो होमोपॉलीसैकेराइड, जिसका कि एग्जांपल है सेल्यूलोज। हेटेरोपॉलीसैकेराइड आप मुझसे पूछो जिससे कि यूनिट्स अलग अलग निकलती हैं, मतलब एक ही यूनिट का नहीं बना हुआ है, वो कई सारी यूनिट उसमें मिक्स हैं। सेल्यूलोज पहले ये लिखवा दूं मैं आपको कि किसका पॉलीमर है वो, क्योंकि आपको पॉलीमर जानना जरूरी है कि वो मोनोमेरिक यूनिट कौन सी है, सेम टाइप की है या अलग अलग टाइप की है। परफेक्ट, तो सेल्यूलोज किसका हुआ? ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ऐसा मिलकर बनेगा, दैट इज व्हाट होमोपॉलीसैकेराइड। ओके, स्टोरेज हेटेरोपॉलीसैकेराइड की यदि बात करते हैं तो हेमिसेल्यूलोज है, अगार है, पैक्टिन है, हेमिसेल्यूलोज, अगार। अब इसमें तो मैं यूनिट का नाम नहीं लिख सकता क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स हैं अलग अलग, उसमें सेम टाइप की यूनिट थी ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, मैंने लिखवा दिया सेल्यूलोज। उसी में आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब होमोपॉलीसैकेराइड्स। ओके, ये तो बात हुई आपके कार्बोहाइड्रेट वाले क्लासिफिकेशन। आयशा पूछ रही सर इज दिस द सेम अगार यूज्ड इन वेजिटेरियन सब्स्टिट्यूट? यस मैडम, अगार ये वही होता है। अगार जो वीड है, सी वीड होती है अगार, अगार अगार कहते हैं उसको, सी वीड को कहते हैं अगार अगार, उससे निकाला जाता है अगार, इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आयशा Okay, sir. प्लीज नोट। ओके, नोटेड। मैं बस चेक कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी में से ज्यादा कुछ मुझे आपको बताना हो तो वो भी पॉइंट्स में आपको लिखवा दूं। हाँ, इन्यूलिन एक दिया हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया तो पूछा जाएगा। होमोपॉलीसैकेराइड का इन्यूलिन, ये किसका है? फ्रुक्टोज। इन्यूलिन किसका पॉलीमर है? फ्रुक्टोज, यानी फ्रुक्टोज 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 फ्रुक्टोज, सेम फ्रुक्टोज मिलता जा रहा है और इन्यूलिन बनेगा, जबकि हेटेरो में ऐसा नहीं है। और कॉन्जुगेटेड पॉलीसैकेराइड की बात करें तो बहुत सारे मैंने आपको बताए हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन कॉन्जुगेट हो गए, दो से मिलकर बना हुआ है। सर वो इन्यूलिन एग्जांपल है? हाँ बोलो बोलो। सर इन्यूलिन किसका एग्जांपल है? इन्यूलिन, फ्रक्टोज, वो आपने लिखा है। हाँ, होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन। सेल्यूलोज ग्लूकोज ही ग्लूकोज से मिलकर बना है, ये फ्रुक्टोज ही फ्रुक्टोज से मिलकर बना है। लर्न करना है अपने को जो एनसीईआरटी में दिया गया, क्योंकि सीधे सीधे सवाल वहां से आते हैं। नोटेड। अजीत,
Shruti, Swanandi, noted? Samyak. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. परफेक्ट परफेक्ट. बस फटाफट कुछ एग्जांपल्स में जो एनसीईआरटी में दिया है उसमें रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर मैं आपको बताऊं और इसकी कहानी फिनिश करें हम लोग. इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्यों इसको नहीं पढ़ा रहा हूं अभी डिटेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि यदि इसकी केमिस्ट्री की बात हम समझे तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ करके एक चैप्टर आएगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. उसमें डिटेल में आपको इसके फ्यूनेरोस, पायरेनोस स्ट्रक्चर, इपीमर्स, एनोमर्स, ये सारा आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है. दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. ओके. अभी जो एनसीईआरटी में बात दी गई है दैट इज रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. इस पर एक सवाल हमेशा आता ही है, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. तो रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं तो रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है? जिनमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है. हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप. जिनमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है वो रिड्यूसिंग शुगर. नो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ना फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है ना कीटोन ग्रुप है. तो ये जो फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है ये क्या करते हैं? कैन रिड्यूस metals from their metallic salt solution. मतलब बच्चों यदि मैंने आपको कॉपर सल्फेट दे दिया है तो उसमें से कॉपर को रिड्यूस करने की टेंडेंसी जिस शुगर में है वो रिड्यूसिंग शुगर. तो यहां लिख देता हूं नॉट एज सच, ऐसा इसमें नहीं होता. ओके. एनसीईआरटी के वर्ड्स उठा रहे हैं हम लोग तो बस. नोट इसमें भी लिखवा दूं एक. सिंस cellulose has no coiled structure, therefore can't hold iodine. Can't hold iodine. I2 को होल्ड नहीं कर सकता. कौन? cellulose. Therefore can't give blue color. आपने 7th 8th में एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा आयोडीन वाला. कौन देता है आयोडीन के साथ ब्लू कलर? Starch. Yeah. But starch can hold and can give blue color with iodine. NCERT statement. Perfect. One more note I'll dictate you. ये क्योंकि सब नीट के स्टेटमेंट लिखा रहा हूं मैं, ये जितना भी बोर्ड पर लिखा है कार्बोहाइड्रेट में यदि आप मुझसे पूछेंगे तो अभी जो बोर्ड पर आपके सामने लिखा है ओनली दिस इज द क्वेश्चन. सच कहूं मैं आपसे तो, क्योंकि राइबोज और डिऑक्सी पेंटोज शुगर तो आपसे न्यूक्लिक एसिड में पूछ लिया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में यही पार्ट आपसे पूछा जाएगा. ओके. एक नोट और लिखा दूं. कुछ होती हैं अमीनो शुगर्स, लाइक एग्जांपल गिवन glucosamine and N-acetyl glucosamine. Glucosamine
लर्न करना है बच्चों, केमिकल कंपाउंड है। एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। अब एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन को क्या कहते हैं? नाग, NAG, नाग। नाग लिखा हुआ भी आ सकता है और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन भी आ सकता है। ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन आर amino sugars, and that's it with sugars or carbohydrates. एक कुछ बॉन्ड्स भी आपको लिखवा दूं। यस, लिखवा दूं। बॉन्ड्स में किसके लिखवा दूं आपको? स्टार्च, अल्फा 1,4। ठीक, इतना नोट कर लिया? Yes. Yes, sir. Yes. तो मैं इसको मिटा दूं यदि, तो ये बोर्ड पूरा ऐसा होगा जिसमें आपसे सारा नीट का इसी बोर्ड पे पूछा जाएगा, ताकि आप वीडियो भी देखें तो इस वीडियो को आप पॉज कर करके देखें। तो यही चीज जो है बस नीट की चीज रहेगी। बॉन्ड्स इन पॉलीमर्स, कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर में बॉन्ड कौन कौन सा है? तो सबसे पहला जो मेरे पास नोटेड है, दैट इज आई थिंक स्टार्च, अल्फा 1,4। स्टार्च, बॉन्ड का नाम अल्फा 1,4, और बॉन्ड का नाम मतलब अल्फा 1,4 क्या? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दूसरा है उसमें ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन में है अल्फा 1,4 एंड 1,6। ग्लाइकोजन अल्फा 1,4 स्ट्रेट चेन में एंड अल्फा 1,6 ब्रांचिंग चेन में। मैं लिख देता हूं स्ट्रेट चेन और ब्रांचिंग। उसके बाद और है काइटिन भी चूंकि दिया है एनसीईआरटी में, इसलिए काइटिन बीटा 1,4, काइटिन बीटा 1,4, काइटिन बीटा 1,4, सेलुलोज बीटा 1,4। That's it. तो ये पार्ट हुआ बच्चों अपना बायोमोलिकुलर पार्ट, जिसमें मैंने आपको लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारा मैंने आपको बताया। परफेक्ट। बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िएगा, क्योंकि जब भी मेरा टेस्ट पेपर आपका होगा, उस टेस्ट पेपर में मोर देन 90% क्वेश्चंस विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। हो सकता है मेरे बताने में कोई स्टेटमेंट रह गया हो, कोई पैराग्राफ रह गया हो, आप मुझे बताएंगे कि सर इसका क्या मतलब है। यदि आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। परफेक्ट। अदरवाइज आप लोग इसको रीड करते रहेंगे एनसीईआरटी को, चैप्टर को छोड़ेंगे नहीं। एनसीईआरटी पूरी हो जाने पर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस शेयर कर दूं फॉर श्योर। अदरवाइज मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं, मैं भूल गया। आप सब लोगों के रेजोसर ऐप चल रहे होंगे, तो जब तक स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, जिसने ले लिया बहुत अच्छी बात है, जिसको लेना है, अब कल से तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, थोड़ा सा तो मुश्किल है 8-10 दिन, तो रेजोसर पर आपके कुछ मॉड्यूल्स होंगे, उस पर आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी, डीपीपी मिल जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगा, उसको सॉल्व करते रहिए। और जब डीसी क्लास लगेगी तो उसमें से डाउट्स पूछेंगे। बट पहला काम है आपका टारगेट एनसीईआरटी की रीडिंग, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब पढ़ के रखेंगे। परफेक्ट। परफेक्ट। चलिए
Let me check before leaving the class. बायोमोलिक्यूल में कोई पार्ट एनसीईआरटी का मुझसे तो नहीं रह गया है. पेज नंबर 142, 143 done at my part. 144, 145 done at my part. 146, yes. There is a concept secondary metabolite. There is a concept secondary metabolite. कोई बहुत तकलीफ नहीं, आपको ही पढ़ना चाहिए था. प्राइमरी मेटाबोलाइट वो होते हैं बच्चों जो आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होते हैं, उसका जो बाई प्रोडक्ट बनता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं. जो उस स्पीशीज में कभी मेटाबोलाइज नहीं होते, वो दूसरी स्पीशीज में जाके मेटाबोलाइज. रिपीट करो, कोई एक सब्सटेंस था, वो मेरी बॉडी में यानी इंसानों में वो प्राइमरी मेटाबोलाइट था, वो मेटाबोलाइज हो रहा था और एक वाई प्रोडक्ट बना रहा था. वो वाई प्रोडक्ट ह्यूमंस के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट है. अपने स्पीशीज में कभी वो यूज नहीं आएगा, लेकिन दूसरी स्पीशीज के लिए वो बहुत काम का यूज सब्सटेंस हो सकता है, जिसमें वो मेटाबोलाइज उनकी बॉडी में जाकर होगा. तो प्लांट के ऐसे बहुत सारे मेटाबोलाइट्स हैं जो दवा के रूप में, ड्रग्स के रूप में, मेडिसिन के रूप में हम तक पहुंचते हैं और हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज. तो हमारे लिए वो क्या हो गए? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. तो दिया हुआ इसमें कई सारे पिगमेंट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, ड्रग्स हैं, अल्कोलाइट्स हैं. वो आपका इरेजर, रबड़ जो होता है, रबड़ आपका इरेजर, वो उसके रेजिन से बना होता है, उसका लेटेक्स निकलता है प्लांट से, उससे बनाते हैं. तो बहुत सारे उनके ऐसे आपके कैप्सूल की कोटिंग, जो दवाइयां आप खाते हैं उसमें कैप्सूल वाली कोई टैबलेट होती है, टैबलेट के ऊपर जिलेटिन की कोटिंग होती है. ये सब उसकी कोटिंग प्लांट के प्रोडक्ट से बनाते हैं, जो आपकी बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होता है. तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट. उस स्पीशीज में जिसमें वो बना उसके लिए काम का नहीं है, उसके लिए तो वेस्ट है, दूसरे स्पीशीज के लिए काम का होगा. परफेक्ट. तो ये टेबल जरूर आपको पढ़ना है, विच इज गिवन इन एनसीईआरटी. सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जो टेबल दिया गया है ये आपको जरूर पढ़ना है. मैंने नीट लिख रखा है, इंपॉर्टेंट लिख रखा है, देखिए अंडरलाइन कर रखा है. परफेक्ट. चलिए, पेज नंबर 147 डन एट माय पार्ट. 148 डन एट माय पार्ट. 149 डन. 150, 151, 152, 153, 54, 55, 56, 57, 58, 59 done at my part. All done. So इस तरह से बच्चों अपने एक पहला चैप्टर अपना कंप्लीट किया, जिसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. एक दिन इसका डीसीएम लगाएंगे और मैं आपको ग्रुप पे बताऊंगा कि वो क्या सॉल्व करना है. उसके बाद उसकी फॉलोड बाय डीसी. एनी डाउट टू एनीवन? फाइनल कॉल इन दिस चैप्टर? No, sir. Not out. आयशा, हाँ बोलिए. Sir, NCERT page 154, the last paragraph. There is some formula given for rate. ये एंजाइम के केस में रेट इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. इज इट? Yes, sir. बेटा सिंपल है ना. डेल्टा में सो चेंज बता रहे हैं, कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ रेट. एंजाइम का रेट दिया गया, कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है. ओके. Okay, sir. एनी मोर डाउट टू एनीवन? No, sir. Perfect. sir. So, to close the session, chapter 1 is completed. Next chapter will be our cell biology and cell division. Perfect. या तो उसको हम स्टार्ट करेंगे या तो फिर हम एनिमल फिजियोलॉजी. मैं प्रेफरेबली करूंगा सीक्वेंस में चले और सेल को फिनिश करें. परफेक्ट. ऑल द बेस्ट. थोड़ा सा रीडिंग लेके रखिए एंड इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डीपीपी और मॉड्यूल्स को रेजोसर ऐप पर देखते रहिए. ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. Thank you. Okay. Sir, bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.